Today we are going to discuss the most important writer, that is John Donne, है ना, the writer from the metaphysical poetry. तो आज हम लोग इसका जो कि बेहतरीन पोएम है इसके इसके द्वारा लिखा हुआ, that is the sun rising, and it is also included in the syllabus of almost all the Indian universities, है ना. तो most important poem है. तो line by line we are going to deal with this poetry line by line in Hindi with the help of our sir. Okay, so the starting one, that is, busy old fool, unruly son, why dost thou does throw windows and throw curtains, call on us? So before we start our lecture, so I would like to take you to the background of this poetry when John Donne was writing the poem. So at that time there were no invention, not the science was actually developed at that time. Okay, तो एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पे, बिकॉज ही इज अ राइटर फ्रॉम द एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन पीरियड. तो उस टाइम पर होता ये था कि बोला गया था, इट वाज मेंशन्ड दैट द sun is actually revolving around the earth at that time, because no invention, no discovery, nothing like that. तो सूर्य एक जगह पर है, the sun is actually constant and the the earth is actually constant and the sun is actually revolving around the earth. उस टाइम पे माइंडसेट था, बट द माइंडसेट and due to the advancement in science and technology, the things has been greatly changed. सब कुछ बदल कर सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है. आज क्या बताया जाता है कि the earth is actually revolving around the sun, but at that time sun was actually revolving around the earth. ये माइंडसेट से लिखा गया. तो जॉन डन उसी माइंडसेट से लिखा है, and that's why he is speaking that by curtain, by windows, the sun was actually having his eyes in the bedroom of the lover, John Donne. Okay, so with the help of our sir, we would start with the very first line: busy old fool, unruly son, why dost thou does throw windows and throw curtains, call on us? ऐसा प्रतीत होता है कि कभी उस सूर्य के किरणों से काफी आहत है और परेशान है. प्रथम लाइन, जैसा इन्होंने कहा, प्रथम लाइन में वह सूर्य को वृद्ध, खुशट और दूसरों के अंतरंग क्षणों में हस्तक्षेप करने वाला मूर्ख बताया. क्यों? क्योंकि कभी अपने प्रेयसी के साथ कुछ अनमोल क्षणों को एंजॉय कर रहा है और उसी समय सूर्य अपनी किरणों को पर्दों के द्वारा झांक कर, दरवाजों से झांक कर अपने किरणों को इनकी तरफ ला रहा है. तो आप जरा कल्पना करिए कि वो जो क्षण, जैसा कि आप लोग भी समझ रहे हैं किस क्षण का जिक्र हमने किया या कवि ने जो जिक्र किया, उस क्षण किसी भी तरह का बाहरी आवरण या हस्तक्षेप क्या किसी प्रेमी के लिए बर्दाश्त करने लायक है? अपितु बिल्कुल नहीं. इसी व्याथा को कवि ने इन लाइनों में प्रतिबिंबित किया है. आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है. Much to thy motion, lover season run. He's actually raising a kind of question here. You can see the question mark. Okay. Much to thy motion, lover season run. Saucy pedantic wretch, go cheat late schoolboys and sour apprentices. Go tell court huntsman that the king will ride. Call country ants to harvest offices. Love all alike, no season knows, nor climb, nor hours, days, months, which are the rates of time. So this is you can see here the quotation, very beautiful quotation, the most famous one. Love all alike, no season knows, nor climb, nor hours, days, months, which are the rates of time. And with the help of our sir, we would understand this very beautiful statement. तो उन्होंने सूर्य को कहा कि तुमको क्या लगता है कि ये प्रेमी जो आपस में क्षण बिताते हैं, जो अंतरंग क्षण बिताते हैं, आपके परिक्रमा से प्रभावित होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. जो परिस्थिति कभी व्यक्त कर रहा है और जो क्षण को वह प्रकाशित करना चाहता है, वस्तुतः उसे किसी भी सांसारिक या असंसारिक कोई भी चीज
अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए वह सूर्य को कह रहा है, तुमको क्या लगता है तुम्हारी किरणें हमको डिस्टर्ब करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रसंग, प्रेम प्रसंग को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है। Thy beams so reverent and strong, why shouldest thou think? Here you can also see another question mark is here. It's actually raising a kind of question. Thy beam so reverent and strong, why shouldest thou think? I could eclipse and cloud them with a wing. ठीक है, अगला जो लाइन है उसमें सूर्य को वह बिल्कुल उद्दंड, उद्दंड कह के, उद्दंड क्यों? उद्दंड हम लोग किसको कहते हैं? जो दूसरों के परिस्थितियों में, दूसरों के अंतरंग क्षणों में दखल अंदाजी करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं। तो उन्होंने सूर्य को बड़ा उद्दंड, अनियमित कह के संबोधित किया है। पेडेंटिक मतलब अपने ज्ञान को बिना मतलब के प्रदर्शन करने वाले। अरे तुम्हारा किरण जो है बिना मतलब का हमारे पास लाने का कोशिश मत करो, उससे कुछ होने वाला नहीं। रिचेस गो चिड लेट स्कूल बाय। अरे तुमको जब करना ही है हस्तक्षेप तो उन बच्चों को करो ना जिनको स्कूल जाने में देर हो रही है, सोए रह जाते हैं, जाके उनको तो उठाओ। एंड सोर प्रेंटिसेज, और उन काम करने वाले कर्मचारियों को जिनको अपनी ड्यूटी पर सही वक्त पर जाना होता है, अरे उसको तो जाके उठाओ। यहाँ तुम क्या कर रहे हो बेवजह? यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइट। जाके राजा के उन दरबारियों को बोलो जिनको सही वक्त पर सुबह सुबह शिकार के लिए राजा के साथ जाना पड़ता है, उनको जाके जगाओ। कॉल कंट्रीमैन एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफ हिज कंट्री। एंड्स का मतलब यहाँ पर किसान। जाओ उन किसानों को उठाओ सुबह जिनको अपने खेतों में फसलों को इकट्ठा करने के लिए जाना होता है। मैं फिर दोहराता हूं, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर टाइम क्लाइम। सॉरी, दोहराइए। Love all alike, no season knows nor climb, nor are days, months, which are the race of time. वस्तुतः मोहब्बत और प्यार जो होता है इसे न सेकंड, न घंटा, न समय, न महीने इसे रोक सकते हैं। किसी के द्वारा यह अवरुद्ध नहीं हो सकता है। ये ऐसा एक आंतरिक परिप्रेक्ष्य है जिसे समय की आवश्यकता नहीं होती। इंसान के मन में कभी भी ये जागृत हो जाता है और उसको एंजॉय कर सकते हैं। Thy beams so reverent and strong, why shouldest thou think? Thy beams so तुमको क्या reverent लगता है and कि strong. तुम्हारी किरणें काफी चतुर हैं, काफी क्रूर हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम मत समझो। हमको लगता है तुम ऐसा सोचते हो, तो सुन लो आगे। I could eclipse and cloud them with a wing, but that I would not lose her sight so तुमको long. मालूम होना चाहिए कि जिस किरणों पर तुम अपने आप को तारीफ कर रहे हो, गर्व कर रहे हो, जरा सा मैं अपने पलकों को ऐसे बंद कर लूं, तुम नजर ही नहीं आओगे। तो बताओ तेरी औकात क्या है? Most important line, you have to remember this, right? But that I would not lose her sight so long. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। If her eyes have not blinded thine, look and tomorrow late, tell me whether both the Indias of a spice and mine. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जैसे ही अपने पलकों को बंद करता हूं तो तुम्हारी किरणें तो ओझल हो जाएंगी, मेरी प्रेसी का चेहरा भी मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम आगे बोलो। Look and tomorrow late, tell me whether both the Indias of a spice and mine. Both the Indias of a spice and mine. और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं सूर्य को संबोधित करके कि आते हो, देखते हो, ठीक है, लेकिन याद रखो मेरी प्रेसी की आंखों में जो चमक है वो चमक तुम्हारे किरणों से ज्यादा तीव्र है। और गलती से भी अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि तुम्हारा जो चक्र, जो परिक्रमा है, वो तमाम संसार में घूमने का है। तुमको सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। खेत को देखना है, खलिहान को देखना है, अलग अलग देशों को देखना है। और अगर तुम्हारी नजर हमारे प्रेयसी पर पड़ गई और तुम गलती से चकाचौंध में फंस जाओगे तो तुम तो गए।
तुम गए। Whether both Indias of a spice and mine, we where thou leavest them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. हाँ। ऐसा है कि मैं जिन भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने प्रेयसी के साथ जो समय बिता रहा हूं, तो तुम इधर उधर पर ध्यान मत दो। जहां भी तुम जाओगे, अगर मैं फिर दोहराता हूं इस लाइन को, अगर मेरे प्रेयसी के नजरों की तीव्र गति को तुम झेल नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम झेल नहीं पाओगे, अगर तुम एक बार उसे देख लेते हो तो तमाम राजा महाराजा जितने भी तुम्हारे एक्टिविटीज हैं उसे तुम भूल जाओगे, और तुमको भी लगने लगेगा कि सारा संसार बेकार है, जो ही तो इस मेरे बिस्तर पर ही है। तुम पागल हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। Siege all state and all princes. Remember, this is the most important line. It has been asked multiple times in different examination, right? So you have to remember this. You have to mark this statement. Siege all state and all princes. I nothing else is. Siege all state, all princes. I nothing else is. Princes do but play us compared to this. All honors mimic, all wealth alchemy. मैं बता रहा हूं, वो तमाम चीजें खूबसूरत बदसूरत जो भी चीज है वो ऐसा कुछ नहीं है बाहर में। जो भी सच्चाई है हमारे बेड पर ही है, ये हमारे यहीं तुमको मिलेगा। तुम पागल हो जाओगे, संभलो। सी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, क्योंकि वो जितने तमाम सुंदर राजकुमारियां हैं उनकी सुंदरता हमारे प्रेयसी में ही समाहित है, हमारी प्रेयसी में ही समाहित है। मैं आलिंगनबद्ध हूं। जैसा कि आप जो एसेंस के बारे में बताएंगे, एक वर्ड है यहाँ पर, बताइए सर। as we can see here, the term jouissance, which was introduced by the writer Helen Sicko, when we were dealing with the literary theory, and there we have discussed in feminism, that is Helen Sicko, jouissance, the female orgasm. Okay, so there is something that there you can relate that beautiful term with this line. तो आप मेरी अवस्था को समझो, मैं भी कामातुर हूं। आप समझ रहे हैं इस वर्ड को, jouissance, मेरी प्रेयसी भी कामातुर है। तो अभी देखो, अभी इसमें छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, मेरी बात को समझो, ऐसा कवि ने सूरज को कहा। Princes do but play us compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. आप समझ लीजिए कि, मैं फिर दोहराता हूं, आप समझ लीजिए कि जितने भी सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, प्रिंसेस डू बट प्लेज अस कंपेयर टू दिस, इस अवस्था, ये जो खूबसूरती जिसके अंतरंग क्षणों के अंतर्गत मैं अपना समय बिता रहा हूं, इसके सामने सारी जो चीजें हैं, सुंदर चीजें, इसकी तुलना में व्यर्थ हैं, बेबाक हैं। ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल ऑनर्स मिमिक, तमाम वो चीजें जिस पर लोग गर्व करते हैं वो मिमिक हैं। मिमिक का मतलब हास्यास्पद हैं, जिनका अपना कोई औचित्य नहीं है। ऑल वेल्थ अल्केमी, और वो जितने भी खूबसूरत चीजें, बहुमूल्य वस्तुएं जो आप देख रहे हो, वो अल्केमी है, वो नकली है, बनावटी है। Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus, thine age ask ease, and since thy duties be to warm the world that's done in warming us. और उन्होंने आगे कहा, thou son art half as happy, देखो हमारी जो खुशी है, हमारी जो खुशी है, उसको अगर तुम तोलोगे तो तुम पाओगे, ऐ सूर्य, जो तुम्हारी खुशी है बिल्कुल अधूरा है, आधा है, उसके मेरे सामने कुछ नहीं। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टर दस, जैसा कि आपको ड्यूटी मिला है परिक्रमा करने का, तो मैं तो कहता हूं कि जब सारे चीजें मेरे बिस्तर पर ही मौजूद हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, तो आप कर बाहर जा काहे को थकते हो? अब तुम्हारा उम्र भी हो गया, अपने किरणों को बचा के रखो। और अब तो मैं कहता हूं, अब तुम लगता है कि मुझे तुम्हारे किरणों से मोहब्बत होने लगी। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि अपने गर्माहट, किरणों की गर्माहट जो है वो हमारे बिस्तर पर ही केंद्रित करो, बाहर जाने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मेरे बिस्तर पर ही मौजूद है।
to warm the world that's done in warming us. Sign here to us, and thou art everywhere. This weight thy center is, these walls thy sphere. दूसरों को गर्म करने की अपेक्षा अरे जरा मेरे बिस्तर को ही गर्म कर दिया करो, सारा चीज यही मौजूद है, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये दोबारा इन्होंने डिस्कस किया। So साइन हियर टू अस, जो चमकना है यहीं चमको, thou are everywhere, सब जगह जो है सब तो तुम्हारा ऐसा ही मौजूद है। यहाँ शब्द ही दोगे तो पूरा सेंट्रलाइज होके तुम्हारा काम भी खत्म हो जाएगा, हमको गर्माहट भी मिल जाएगी और मजा भी आएगा। this weight thy center is, these walls thy sphere. यही तुम्हारा परिक्रमा करने का क्षेत्र है, यही तुम्हारा स्फेयर है। स्फेयर आप उसको क्षेत्र है कोई बताए, यही तुम्हारा क्षेत्र है परिक्रमा करने का, यही तुम्हारा सब कुछ है, बाहर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। सॉरी। तो ये जो है कविता आप लोग इसको सुनिए, समझिए, और ये समझने की चीज है। और कल्पना करिए कि वो कवि नहीं है, वो खुद आप ही हैं। उसके बाद इसका आनंद और कुछ है। और हम लोग का ये छोटा सा प्रयास है, आप इसको समझें और ऐसे लोगों को हम इस तरह की बातें पहुंचाना चाहते हैं, उन पाठकों को इस बात को समझाने के लिए जिनको लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं लेकिन शब्दाभाव के कारण, भाषा के कारण उनके जिंदगी में बैरियर आती है। तो इसीलिए मेरा प्रयास है, आप लोग से अनुरोध है, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, ये चीज आप ही लोग के किया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी चीज मैं आप तक पहुंचा सकूं। And I think we are almost done with our this poetry written by John Donne, The Sun Rising. Okay, and there are many things to discuss about this writer John Donne, but the time is too short, and because of the statement that Sir has told us, okay, I'm totally mesmerized by the statement, by his pronunciation, and many other things, which is very आगे much आने वाले effective. समय में मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ शेक्सपियर के सोनेट्स हैं जो लोगों को आधे अधूरी नजर आते हैं समझ के कारण, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे और बातों को सरल रूप से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।